ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल में पढ़ो आपा, तुम भी मैं भी। Okay. हाँ, तो क्या अटेम्प्ट करिए इसमें? I think no medication needed. मेरे हिसाब से भी नो Science. मेडिकेशन नीडेड। फ्लूकोनाजोल, ठीक है, देखते हैं। आ जाओ। Cryptococcal meningitis is an AIDS-defining illness that primarily affects patients with CD4 count of less than 100 per MMQ. Three Oh, phases of the treatment are required to ensure the eradication and prevent the relapse. Induction with amphotericin B and flucytosine for 2 weeks. Consolidation with high oral dose fluconazole for 8 weeks. Maintenance dose with low oral fluconazole until CD4 counts recover to greater than 100 per mmq for greater than 3 months on antiretroviral. अब ये चीज हमें नहीं पता थी, दिस इज न्यू, जो हमें याद करना है, क्योंकि ये मैनेजमेंट का हिस्सा है, जो मतलब ठीक स्टेप 2 का चीज है। ठीक है, मतलब दिस इज प्योरली स्टेप 2 थिंग, नॉट इवन 1% स्टेप 1 थिंग। बस हमें स्टेप 1 की लेवल पे ट्रीटमेंट हमने पढ़े हैं, वो पता है हमें। 3 phases ऑफ द ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर द एरेडिकेशन एंड प्रिवेंट रिलैप्स। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होगा वो आपका इंडक्शन with amphotericin B and flucytosine for 2 weeks. Second is consolidation with high dose oral fluconazole for 8 weeks. And third is maintenance dose with maintenance with low dose oral fluconazole until CD4 counts recover to greater than 100 per mmq for greater than 3 months on antiretroviral therapy. और हमें ये याद करना है, सबसे पहला इंडक्शन विद in एम्फोटेरिसिन this बी एंड question, फ्लूसाइटोसिन। हाँ पा। in this question, if they ask about the dose thing, like high हाँ dose, low dose, both option is available, then we will go for high dose, because he is treated for 2 weeks, and he just take the liposomal amphotericin B and flucytosine. Now the high dose oral fluconazole for 8 weeks, and then हाँ after this we have to give the low बट dose oral fluconazole until ओके CD4 cell compress okay, for the third week you are saying, for the third phase you are saying that we have to follow low dose oral fluconazole until CD4 counts recover to greater than 100 per mm cube। सही, मैं समझ गया कि भाई यहाँ पर सवाल में ऑप्शन में लो डोज और हाई डोज भी दे सकता है इन द सेकंड फेज, तो हमें सेकंड फेज में हाई डोज यूज करना है फॉर द 8 महीने 8 हफ्ते। पहले 2 वीक, फर्स्ट 2 वीक्स यानी आपका आधा महीना, उसके बाद 2 महीने, 2.5 महीने के बाद फिर अगेन आपने फॉर अबाउट 3 मंथ्स यानी 5.5 महीने का टोटली आपका ट्रीटमेंट चल जाएगा 5.5 मंथ्स का। ठीक है, यानी 5 मंथ्स 2 वीक्स का टोटल ये ट्रीटमेंट है, अगर आप देखो एक जुमरे में तो। ठीक है, समझ गया। बस ये तीनों जो है वो आपको याद करने। तो इंडक्शन थेरेपी विद लाइपोसोमल amphotericin B plus flucytosine is given for greater than 2 weeks until acute symptoms resolve or cerebrospinal fluid becomes sterile. Consolidation therapy with high dose oral fluconazole is given for greater than or equal to 8 weeks to prevent disease ka relapse. Maintenance therapy with low dose oral fluconazole is given indefinitely and or until CD4 counts rise to greater than 100 per mm cube for greater than 3 months on antiretroviral therapy. Induction therapy, okay, ठीक है, ये तीन हमारे ट्रीटमेंट याद करने। Antiretroviral therapy should be initiated in all patients with HIV. However, due to the risk of life-threatening CNS complications from immune
reconstitution syndrome है, क्या लिखा है इसने? ART should be initiated in all the patients with HIV. However, due to risk of life-threatening CNS complications from immune reconstitution syndrome, ART initiation is generally delayed for approximately 2 weeks after the treatment begins for Cryptococcus. Okay, ये उसकी बात कर रहा है. हाँ. Reconstitution syndrome, but what I got, first we have to treat the Cryptococcus sign symptom. Yes. Cryptococcus thing for 2 weeks. Serious, the liposomal amphotericin B and flucytosine, and after that we start the ART. So these 2 weeks we will just give this liposomal amphotericin B and flucytosine. सही 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 सही. Cryptococcal meningitis is a common AIDS-defining illness in patients with HIV who have CD4 count of less than 100 per mmQ. Patients generally present with subacute fever, headache, and altered mental status. Diagnosis is made when encapsulated yeast Cryptococcus neoformans are identified in cerebrospinal fluid. ठीक है. Intense therapy with low dose. Okay. Immune reconstitution syndrome मैंने पढ़ा तो है. इसमें तुक्का लगाता हूँ, फिर हम सर्च करते हैं. सही है. इसमें ये होना चाहिए कि आपका जब आप एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हो ना, तो आपका जो CD4 काउंट जो HIV की वजह से कम हो गया था, सही है ना? HIV की वजह से CD4 काउंट लोअर होता है. CD4 काउंट को कम करता है HIV. आपने एंटी रेट्रोवायरल दिया, CD4 काउंट बढ़ेगा. अब जब CD4 काउंट बढ़ेगा तो हो सकता है कि वो आपके क्रिप्टोकोकस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इम्यून जनरेट कर दे और आपकी बॉडी के जो यूं समझ लो कि तबाही बर्बादी हो जाए. ठीक है, ये मेरा तुक्का कॉन्सेप्ट है जो मैंने प्रीवियसली नॉलेज से निकाला है. अब हम देखते हैं चचा क्या बोलते हैं. चचा क्या बोलते हैं? ChatGPT Pro. ओके. Immune reconstruction inflammatory syndrome is a paradoxical clinical worsening of a known condition or unmasking of a previously subclinical infection after initiation of antiretroviral therapy in HIV. It occurs because the recovering immune system mounts an exaggerated inflammatory response. यही चीज मैंने बोली थी कि जब आप क्या करते हो, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हो तो आपका CD4 काउंट राइज होता है, वायरल लोड कम होता है, तो जो आपका इम्यून है सिस्टम है वो किसी खास पैथोजन जैसे क्रिप्टोकोकस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा और आपकी बॉडी की माँ बहन एक करके रख देगा. ठीक है, यानी आपकी बॉडी को डिस्ट्रक्ट करके रख देगा. अपना ही इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के लिए इन्फ्लेमेटरी बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा. इट इज लाइक हाइपर इम्यूनिटी. इट इज लाइक हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं ना जैसे हम लोग. इट इज लाइक हाइपर इम्यूनिटी. ठीक है. इन एडवांस्ड HIV इम्यून सप्रेशन मास्क इन्फेक्शन जैसे TB, CMV, क्रिप्टोकोकस. ठीक है, कि एडवांस्ड HIV में क्या होगा कि आपका जो TB है, CMV है, क्रिप्टोकोकस है, इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी इम्यून जनरेट नहीं करती. ऐसे ही होगा ना कि एडवांस्ड HIV में क्या होगा, आपका CD4 काउंट 0 होगा, CD4 काउंट कम होगा. ठीक है, तो आपकी बॉडी TB के अगेंस्ट, CMV के अगेंस्ट, क्रिप्टोकोकस के अगेंस्ट, यानी सिंपल समझाता हूँ कि आपकी बॉडी किसी खास बैक्टीरिया के अगेंस्ट फीवर जनरेट नहीं करेगी. तो आपको लगेगा सब चीज नॉर्मल चल रही है फिल वक्त. लेकिन जब आप ART स्टार्ट करते हो, CD4 काउंट रेज होता है, जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड इम्यून सिस्टम होता है, ये ऐसे ही जैसे किसी गरीब के पास एकदम से लॉटरी लग जाए, पैसा आ जाए और वो सारा पैसा क्या करे, शराब पीने में जाया कर दे, अयाशियां जुआ खेलने में जाया कर दे. Suddenly recognizes latent active pathogens, excessive inflammation reaction, worsening symptoms. ठीक है. आपा ब्रो, हेलो, यू आर म्यूट आपा. चलो मैं बताता जाता हूँ, मुझे लग रहा है आप मुझे सुन रहे हो. ओके. रिस्क फैक्टर्स भी क्या है? वेरी लो CD4 काउंट एट ART इनिशिएशन, लेस देन 50 cells per microliter, high viral load, rapid immune recovery after ART, presence of latent or opportunistic infection at the baseline. इसके जो मुझे ये पढ़ के मुझे ये याद आ रहा है, भलाई का जमाना ही नहीं है कि आपने भलाई करी कि आपने इम्यून सिस्टम को वापस रिएक्टिवेट किया और इम्यून सिस्टम ने आप ही के जो है ना वो लगा के रख दिए. ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा बच के रहना है, इम्यून सिस्टम से थोड़ा सही से खेलना है उसके साथ. तो हमने क्या करना है,
2 हफ्ते पहले हमने सारे जो भी पैथोजन है, टीबी हो, क्रिप्टोकोकस हो, कोई और पैथोजन के ऊपर लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल सीएमवी हो, इनका ट्रीटमेंट देना है 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद आपने एआरटी स्टार्ट करनी है। पैराडॉक्सिकली आईआरआईएस का मकसद ये है कि वर्सनिंग ऑफ नोन प्रीवियसली ट्रीटेड इन्फेक्शन आफ्टर एआरटी, टीबी पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट सडनली वर्सन्स आफ्टर एआरटी। अनमास्किंग आईआरएस क्या होता है? प्रीवियसली अनडायग्नोज्ड इन्फेक्शन becomes clinically evident after ART। ठीक है, ये चीजें ठीक है। कॉमन इन्फेक्शंस टीबी, क्रिप्टोकोकस, सीएमवी रेटिनाइटिस, herpes zoster, mycobacterium avium complex, fever, lymphadenopathy, worsening pulmonary infiltrates, enlarging CNS lesions, meningitis, worsening ocular inflammation depending on the pathogen। जब आपको इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाएगा तो ये सारे मसले होंगे। मैनेजमेंट क्या है? एआरटी कंटिन्यू करते रहो, डो नॉट स्टॉप अनलेस लाइफ थ्रेटनिंग, ट्रीट द अंडरलाइंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। 2 हफ्ते पहले कर लेते तो ये सारे मसले ही ना होते। कोई मसला नहीं, अब तो गोबाटा किया है तो उसको सेट करो। उसके बाद एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सिवियर आईआरआईएस, स्पेशली सीएनएस टीबी, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस सपोर्टिव केयर। की एग्जाम स्टेप 1 पॉइंट, आईआरआईएस is not due to ART failure or drug resistance but is immune recovery and inflammation। Okay bro, now I am preparing for step 2A, so stay accordingly. Here answers on the okay, we may use answers step 1 समझ जाएगा। एलोस चले आगे, नहीं चाहिए समझ। ओके, उसके बाद हमारे पास कैस्पो पंजिन चॉइस ए, एकाइनोकेंडिन and echinocandin is used to treat some fungal infections, for example Aspergillus candida, but it is not effective against Cryptococcus species. Itaconazole can be used for consolidation therapy in those unable to take fluconazole. However, it is considered a second line agent because it is less effective at preventing relapse and has more adverse effects and drug reactions। तो हम इसको नहीं यूज कर सकते। ओके, अगर पेशेंट फ्लूकोनाजोल ले रहा है तो ड्रग ऑफ चॉइस वही होगी। सीजेशन ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर इंडक्शन थेरेपी इज एसोसिएटेड विद हाई रेट ऑफ रिलैप्स। पेशेंट्स नीड टू हैव कंसोलिडेशन थेरेपी टू प्रिवेंट रिकरेंस। सही बात है। उसके बाद है भाई, ऑल्दो corticosteroids are used as an adjuvant treatment to limit inflammation in opportunistic infections, severe pneumocystis cervica and tuberculous meningitis। यही चीज हमें चैट जीपीटी ने भी पढ़ाई थी कि आईआरआईएस में आप यूज कर सकते हो corticosteroids, तो यहाँ भी आप कर सकते हो। Corticosteroids do not improve the outcomes in the patient with the cryptococcal meningitis but may slow the clearance of organism from the CNS। Therefore, corticosteroids are not recommended as a part of steroid treatment। ये 3 चीजें जो हमें याद रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडक्शन थेरेपी स्टार्ट में किक लगाने के लिए, कंसोलिडेशन थेरेपी बाइक को रेस्ट देने के लिए, मेंटेनेंस थेरेपी बाइक की रेस्ट संभाल के रखने के लिए। किक लगाना है लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी प्लस फ्लूसाइटोसोन। क्या बोल रहे थे आपा जानी, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब आईआरआईएस हो जाता है ना आपको, फॉर सपोज आपने क्या किया, पेशेंट को एआरटी लगाया, ठीक है, यू डिडंट चेक फॉर द अदर प्रॉब्लम्स कि भाई उसको टीबी तो नहीं है, उसको क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस तो नहीं है, उसको herpes zoster तो नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो वायरल लोड होगा वो कम होगा तो इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। अब जब इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया है, भलाई का जमाना है नहीं, अब इम्यून ने देखा, टी सेल ने देखा कि यार बॉडी में तो पैथोजन पड़ा हुआ है, इसको क्यों ना तबाह बर्बाद करें, तो वो अपने ही घर को तबाह करता है, तो वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। सो नाउ व्हाट डू वी हैव एज एन ऑप्शन कि हम क्या करें, अब उस जो टी सेल को हमने जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया था उसको थोड़ा स्लो डाउन करें, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन करें। दैट्स व्हाई वी कैन यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर दैट। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर आपके जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपको ये लग चुके हैं, न्यूमोसिस्टिस जेरोविकाई का या ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस का, तो आप इनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड जनरली भी यूज कर सकते हो, बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस
It is just to slow the clearance of organism in the CNS from the CNS. ठीक है, मतलब स्लो करने के लिए नहीं है, इट इज जस्ट कि आप जो है वो सिस्टम जो भी डिजीज प्रोसेस चल रहा है उसको थोड़ा सा आप मतलब स्लो करो, इन्फ्लेमेशन को स्लो करो। असल में आप इन्फ्लेमेशन को लिमिट करते हो। समझ आ रही है मेरी बात कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रिप्टोकोकस वाले पेशेंट में कब यूज करेंगे, जब IRIS हो चुका हो आपको, नॉट उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट। कि आपकी बॉडी के घोड़े लग रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करना है टू स्लो डाउन द प्रोसेस। कि भाई थोड़ा धीमे आ जा। CD4 सेल को कहना है कि जानी इतना भी गुस्सा नहीं करते, थोड़ा सब्र करो। ये ऐसे ही है कि बंदे को आपने क्या किया, एक बंदा था सुस्त, ठीक है, तुम्हारे जैसा, मैंने उसको खिलाया पिलाया, उसको जवान किया, उसको हेल्दी किया। अब वो क्या करे, अपने घर की गुस्सा है उसको और गुस्से में क्या करे, अपने घर की टीवी तोड़े। ऐसे तो बेड पे पड़ा हुआ अच्छा था, तो तुम क्या करोगी, थोड़ा खाना उसको कम खिलाओगी। गॉट इट। ये है IRIS और ये मैंने पढ़ा है पहले, बट इट वाज गुड।